लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर ने नेशनल मीट ऑफ आरटीआई एक्ट का उद्घाटन किया। स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस फॉर पब्लिक एंटरप्राइजेस स्कोप लह ने इसका आयोजन किया। एलजी ने पीएसआईज पर स्कोप की एक फिल्म भी रिलीज की। आत्मनिर्भर भारत की अंतर्गत ये कदम उठाया गया और एक वेबसाइट को भी चालू किया गया। लद्दाख में आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन देने के लिए वेबसाइट शुरू की गई है। सीईसी वाई के सिन्हा गेस्ट ऑफ ऑनर है। इसका मकसद सेंट्रल पब्लिक सेक्रेटरी इंटरप्रेन्योर्स को आरटीआई एक्ट के मैनेजमेंट और इम्प्लीमेंटेशन में पाए जा रहे चैलेंज पर गौर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है। लद्दाख के कई ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव्स, सीपीआईओज, न्यूडल ऑफिसर और बाकी लोग मौजूद थे। एलजी ने स्कोप को एक मॉरल फोर्स करार दिया है। लद्दाख में नेशनल मीट मुनक्किद करने पर एलजी ने उनका एप्रिशिएट किया। माथुर ने आरटीआई एक्ट को अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाने वाला एक्ट करार दिया। स्कोप के प्रोग्राम डायरेक्टर ओपी खरवाल ने प्रोग्राम पर्सपेक्टिव एंड इनिशिएटिव्स पर रोशनी डाली। स्कोप के डायरेक्टर जनरल अतुल सोबिती, वाइस चेयरमैन प्रदीप कुमार दास, फॉर्मर इंफॉर्मेशन कमिश्नर एमएम अंसारी, एडवाइजर उमंग नरवाला, कमिश्नर सेक्रेटरी अजीत कुमार साहू, सेक्रेटरी महबूब अली खान भी मीट में शामिल हुए। Of course, a old and known organization. I would say that all the public sectors, while they coordinate everything, they also act as the moral force. I think that is the most important role of scope. Instead of monitoring that ये production हुआ, इतना percentage है, all those things are there. But to have some unity of thought, some unity of purpose, to bring new thoughts, to push where required all public sectors to move in a direction, for example RTI. I think these are the efforts which Scope has been making. I remember earlier when I was CIC, we had a similar conference. Porwal Saab was kind enough to spearhead the efforts, and that proved to be very successful. We had several publications which came out of it. So I must applaud the efforts of Scope in all the things that they are doing vis-a-vis RTI Act, and of course in myriads of other areas. The Central Information Commissioner, of course, and the Commission needs no introduction. But I am very happy to hear that the pendency has gone down to 26,000 under your leadership. I think it is very important. Now, I think CIC has a good infrastructure. You have a good team of information commissioners, and the results are there for everybody to see that things are moving, and there is a perceptible impact. I would like to talk a little bit about RTI Act itself and the role of the public sectors there. In fact, morning when we were earlier in this conference, when we were lighting the lamp, two things which came out. One was this tape which was played, Tamso Ma Jyotirgmay. Now RTI Act is actually about this, that where there is darkness, it brings light. And I will come to that. It is extremely important to bring light. The second thing which happened was that you found that some of the wicks, they light up very quickly, and some of them were taking a lot of effort to light up. Our public sector is like that vis-a-vis RTI Act. Some of them pick up very quickly and start doing a lot of things on RTI Act. Some of them are stragglers, I would use the word. But fact is that RTI Act is the responsibility, is the legal responsibility of every single public sector. मैं ऋषभ कुमार हूँ। मैं स्कोप स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज के कॉर्पोरेट अफेयर्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ और वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस नेशनल मीट। जो आरटीआई का जो अभी वो जो इवेंट चल रहा था उसके बारे में थोड़ा बता देंगे। जी, तो स्कोप एज एन एपेक्स बॉडी ऑफ
सार्वजनिक उपक्रम जितने हैं हमारे भारत में, उनकी एक संस्थान के रिप्रेजेंटेटिव संस्थान के रूप में हमारा ये प्रयास होता है कि हम उनमें एक्सेलेंस को प्रमोट करें थ्रू पॉलिसी एडवोकेसी या फिर इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा के। तो आरटीआई हमारा वन ऑफ द प्राइम एरियाज़ हैं जिस पे हम काम करते हैं। लगभग 17 साल हो गए हैं आरटीआई एक्ट को इम्प्लीमेंट हुए, और इन 17 सालों में हमने न्यूमरस रिकमेंडेशंस हमने सीआईसी के समक्ष प्रस्तुत भी किए हैं, पब्लिक सेक्टर के व्यूज़ रखे हैं, और साथ ही कुछ जटिलताएं जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के साथ जुड़ी हुई हैं उनको भी हम क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए हमने ये इवेंट, आज उसी उपलक्ष्य में हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। तो आरटीआई जब हम बात करते हैं सर आरटीआई के बारे में, तो काफ़ी लोगों को आरटीआई के बारे में पता नहीं होगा कि आरटीआई किसे कहते हैं। तो इस तरह के इवेंट करना कितना लाभदायक होगा सर अवेयरनेस के लिए? चूँकि हम सार्वजनिक संस्थान जो हैं हमारे भारत में, पब्लिक सेक्टर जो हैं, हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। पब्लिक सेक्टर भारत सरकार की ही एक इकाई के रूप में काम करती हैं। तो एक भारत सरकार की इकाई के रूप में सार्वजनिक संस्थान का ये दायित्व भी बनता है और ये कर्तव्य भी बनता है, देश के जितनी भी 130 करोड़ जनता हैं उनके प्रति ये दायित्व बनता है, बिकॉज सारे पब्लिक सेक्टर्स जो हैं उनके जो पैसे हैं वो सब सार्वजनिक, सारे समाज के लिए है, समाज की बेहतरी के लिए है। तो साथ ही ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ये पावर देता है उन लोगों को, और हम उन्हें बताएं, हमें वो ट्रांसपेरेंसी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो एथिक्स हैं, वो हमेशा चेक एंड बैलेंसेस जो हैं वो हमेशा सही स्थान पे, सही जगह पे रहें, अपने मापदंड पे एकदम खरे उतरें। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि सार्वजनिक संस्थान जो हैं वो बेस्ट आरटीआई प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। तो ये प्रोग्राम एक्चुअली में जो सार्वजनिक उपकरण हैं उनके CPIOs, PIOs, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जो एपेलेट अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए है, ताकि वो जान सकें जो समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। क्योंकि आरटीआई में ये होता है कि बहुत सारे आरटीआई के रिक्वेस्ट्स आते हैं पब्लिक संस्थानों को, और कई बार ऐसा भी होता है कि नेफेरियस कुछ डूबियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन भी सीख किए जाते हैं। तो उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं? कुछ जेन्युइन इंफॉर्मेशन भी सीख की जाती हैं। तो जेन्युइन क्या है, जेन्युइन क्या नहीं है, ये दायित्व बनता है बोथ फॉर इंफॉर्मेशन सीकर एंड इंफॉर्मेशन गिवर, जो दे रहा है और जो ले रहा है, इन दोनों का दायित्व बनता है कि इसके उच्चतम मापदंड को हमेशा फॉलो किया जाए।